கண்களை மூடி தேவனுடைய கருத்து हम आंखें बंद करके प्रभु की ओर देखें। ஆண்டவர் நம்மோடு பேசணும் प्रभु हमसे बातें करने के लिए தேவக்காரன் நம்மோடு கூட இருக்கும் प्रभु क्या सदा हमारे साथ ஆண்டவரே रहे। பரலோகத்தின் தேவன் ஆண்டவர் स्वर्गीय परमेश्वर है। இன்றைக்கு பரலோகத்துக்கு போற முன்னாடி உடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தீர் என்று பாருங்க स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को अपने आशीष திரும்ப दिया। பிரசனுடைய மகிமை ஆண்டவர் आपके कृपा प्रशंसा உங்களுடைய எல்லா தேவை சந்திக்கணும் आपके बच्चों के सारे जय நான் துணை இருக்கேன்னு சொல்லி मत डर में तुम्हारा साथ देता பலத்தை है। தர மாட்டோம் आपके हाथ प्रभु பிள்ளைகள் ஒருவருடைய ஆசிரியை பலப்படுத்துங்க ஆண்டவர் आपके बच्चे लारे को எல்லா आशीष தேவைகளும் சந்திங்க सारे जरूरी पूरा करो। இயேசு நாமத்தில் यीशु के नाम से आमीन। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। இதோ தேவசேனைக்கு நேரா கணக்கு சொல்லுவோம் லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் लुका निकालेंगे। लुका 24 24 24 का निकालो। 49 50 51 वाचा लूका 24 ಎಲ್ಲ எடுத்துக்கொள்ளுங்க 24 और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर लूका 24 49 50 51 हाँ, 49 और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग में सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। ஹல்லேலூயா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து மூணாம் நாள் உயிரோடு இருந்து प्रभु यीशु मसीह जब मर के तीसरा दिन जी उठा சீசனுக்கு காட்சி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் अपने चेलों को जब उसने दर्शन दिया ஒவ்வொருத்தருக்கும் தரிசனம் கொடுத்து முடிச்சாச்சு हर एक को दर्शन दिया था। அதுக்கப்புறம் उसके बाद அவரு எருசலேம்ல இருந்து பெத்தானியா வரைக்கும் கூட்டு போறாரு जेरूसलम से लेके बेथानिया तक वो चला आया। எருசலேம்ல இருந்து பெத்தானியா வரைக்கும் கூட்டு போறாரு जेरूसलम से बेथानिया तक वो लेके आया। அங்க குறிப்பிட்ட மலையில போய் சீசன்லாம் முன்னாடி இல்லைங்கன்னு சொல்றாரு वहाँ पे पहाड़ के पास सभी चेलों को लाकर पता तुम यहीं पे रुकना। நான் என் பிதாவின் இடத்துக்கு போறேன் मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। நீங்க எல்லாம் போய் அந்த பெத்தானியா குறிப்பிட்ட மலையில போய் நில்லுங்க तुम सब इस पहाड़ के ऊपर आ जाओ करके प्रभु ने उन लोगों को बुलाया। அங்க போய் எல்லாம் நின்ட்டாங்க अभी सब चेले वहाँ पे खड़े हैं। இயேசு அவரோட பேசிட்டு இருக்காரு यीशु पहले उनसे बातें कर रहा है। நீங்க புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிக்கும் பிதா குமர பரிசுத்த ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அவங்கள ரட்சித்து उनको बताया था कि तुम हर देश हर गांव में तुम निकल के जाओ और यीशु के सुसमाचार दो। उनको मसीह के अंदर चलाओ। எல்லாருக்கும் போய் நற்செய்தி சொல்லுங்க सभी को संदेश देना। நான் என் பிதாவின் இடத்துக்கு போறேன் मैं मेरे पिता के पास जाने का समय பரலோகத்துக்கு आया। போறேன் मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்க इसलिए इस बात पे तुम चिंता मत करो। பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்குள்ள வரும் पवित्र आत्मा तुम पर நீங்க आएगा பலனடைவீங்க और तुम सामर्थ पाएंगे। எருசலேம்ல இருந்து யூதேயா வரைக்கும் உலகத்துல சகல எனக்கு வார்த்தையா जेरूसलम से लेके जुदिया तक तुम सभी देश पे सभी जगह में मेरी गवाह बनो। அப்படி பேசிட்டே இருக்கேன் इससे प्रभु बातें कर रहा है। நீங்க சாவுக்கு எதுவான குடிச்சாலும் கட்டு உணர்த்தாங்க तो प्रभु ने उधर बताया मरण मतलब मृत्यु के सामान अगर कुछ भी तुम्हें खाने के लिए जेर के सामान कुछ भी अगर तुम्हें खाने के लिए देता है जो मृत्यु की ओर ले जाता है वैसे खाने के बाद भी तुम नहीं मरो। விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் जो विश्वास करते हैं நீங்க வியாதி சொன்ன கைகளை இருப்பீங்க तो उसी विश्वास से तुम बीमार के ऊपर हाथ உடனே लगाएंगे। வியாதி उनके குணமாகும் बीमार चंगा होगा விசுவாச அலறி ஓடும் और शैतानी उनसे दूर हटेगा। செய்வன கட்டு மாறி जादू போகும் टोना उनसे दूर हट जाएगा। எவ்வளவு பெரிய வியாதி இருந்தாலும் மாறி போகும் कितने भी बड़ा बीमार होने दो எவ்வளவு उसको छुटकारा கஷ்டம் होगा। இருந்தாலும் எல்லாம் மாறி போகும் कितना भी बड़ा समस्या रहने दो उसको छुटकारा मिलेगा। இதா என்னை ஆசிரிக்கு போல जैसे ही पिता मुझे आशीष दिया அடுத்து ரெண்டு கரங்களை வைத்து वैसे ही दोनों हाथों उठाकर எல்லாரையும் ஆசிரியர் सभी को आशीष देकर चला गया। அலையிலுயா हालेलुया। அன்றைக்கு சீசர்கள் ஆசிரியர் இன்னைக்கு யார் ஆசிரியர் यीशु ने उन दिनों में चेलों को आशीष दिया था और आज के दिन में किसको आशीष देगा? किसको देगा? ரெண்டு கரங்களையும் வைத்து ஆசிரியர் दोनों हाथ उठाकर हमें वो आशीष देगा। அலையிலுயா हालेलुया। தேவன் பரலோகத்துக்கு போகும்போது ரெண்டு கரங்களையும் வைத்து ஆசிரியர் परमेश्वर यीशु जब स्वर्ग जा रहा था दोनों हाथों उठाकर अपने ओर बढ़ाकर आशीष दिया। அன்னைக்கு உங்களை ஆசிரியர் आज प्रभु आपको आशीष देगा। அலையிலுயா हालेलुया। விசுவாசிக்கிறேன் के लिए विश्वास करते हैं। அலையிலுயா हालेलुया। தேவ கரம் உங்களோடு இருக்கு प्रभु के हाथ आपके साथ बने रहेगा। ஆசீர்வாதங்கிறது பெரிய ஒரு இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் आशीष कहा तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। ஆசீர்வாதத்தை யாருமே விரும்பாம இருக்க மாட்டாங்க आशीष आपके कोई मना नहीं करते आशीष। இந்த உலகத்தில் உள்ள முழு மனுக்குலமும் ஆசீர்வாதத்தை விரும்பிக்கிட்டு इस दुनिया के सभी लोग वही आशीष पाने के लिए तड़पते हैं। அலையிலுயா हालेलुया। அன்றைக்கு பார்க்கலாம் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு ஆசீர்வாதம்
उन दिनों में देखते हैं अब्राहम इसहाक को आशीष दिया, ஈசாக்கு யாக்கோபு ஆசீர்வதித்தார். इसहाक ने याकूब को आशीष दिया யாக்கோபு 12 கோத்திரத்தையும் வர வச்சு ஆசீர்வதித்தார். और याकूब ने 12 अपने बच्चों को बुलाकर उसके आशीष दिया ஆண்டவராகிய இயேசு சீசரை ஆசீர்வதித்தார். और प्रभु ने चेलों को आशीष எங்க दिया। போறதுக்கு முன்னாடி कहाँ पे जाने के पहला? பரலோகத்துக்கு போறார். स्वर्ग जाने से पहला। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ யார் ஆசீர்வதிக்கிறாரு? और आज किसको आशीष देगा? நாம ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஹalleluya. அந்த ஆசீர்வாதம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு और கொடுக்கும். वही जो आशीष सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசிக்கிறீங்க? इसलिए एहसास करते हैं நம்ம தேவன் சொன்னார்ல, உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவங்கள ஆசீர்வதிப்பேன். क्योंकि प्रभु ने बताया जो तुम्हें आशीष देगा उसे ही मैं आशीष दूंगा। எவ்வளவு பெரிய கொடக்கார பாவியா वो இருந்தாலும், कितना भी बड़ा खूनी भी रहना हो, எவ்வளவு பெரிய திருடனா இருந்தாலும் சரி, कितना भी बड़ा चोर भी होना हो, எவ்வளவு பெரிய மகா பாவியா இருந்தாலும் சரி, कितना भी बड़ा पाप किया हुआ व्यक्ति होने दो, ஆமா, உங்ககிட்ட வந்து யாரு நிக்கிறாங்களோ, अगर वो आपके पास आके खड़ा है, பாவம் மன்னிக்கிட்டேன்னு சொன்னா மன்னிச்சிடலாம். अगर आप उसे देखकर कहते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है, तो उसके लिए हो गया है। ஹalleluya. ஹalleluya. சாப பாவம்லாம் நீங்கிட்டு தான். तेरी पाप सिर्फ तुझसे हट गया बोलेंगे जरूर उसके लिए हट गया। வியாதி குணமாயிட்டா குணமாயிட்டு தான். तेरी बीमार चंगा हो गया बोलेंगे तो जरूर उसके लिए चंगा है। ஹalleluya. हालेलुया। சாரா சரி தெரியும். आप सारा सनी को अच्छे से जानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। எவ்வளவு நாளா குழந்தை இல்லாம? कितने सालों से बच्चा नहीं था। ஹalleluya. हालेलुया। பிரேட் வந்தாங்க, நல்ல அழகான குழந்தையா. जब प्रार्थना में आए थे बहुत अच्छा सुंदर सा एक बेटी हो गई। தேசத்துல அந்த என்ன அந்த டியூல அமிதாப் பச்சன் பங்களா கேட்டாப்ல நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிக்கணும். जू में अमिताभ बच्चन बंगले के उधर सामने एक हॉल में प्रेयर रखता था। टेस्टर उधर उनको तभी प्रार्थना किया। அந்த துணியை போட்டு எல்லாருக்கும் மேல சாப்பிட்டு वो उनके सर पे साड़ी रख के उनके लिए प्रार्थना किया था। டக்குன்னு பாருங்க, அவங்க சொல்றாங்க எத்தனையோ ஜெனரேஷனும் குழந்தை இல்லாம இருந்துச்சு. देखो उन्होंने बताया ऐसे मतलब हमारे वंश में पीड़ित की मतलब बच्चे की ये समस्या था। சாபக்கட்டு மாதிரி. एक सांप के बंधन के समान। அப்ப நல்லா பெரிய பெரிய மந்திரவாதி எல்லாம் பார்க்க போனாங்க. और इतना भी कि वो लोग बड़े बड़े जादू वाले के पास भी जाके आए थे। இங்க பாம்பேல தெரியாத மந்திரவாதியே கிடையாது. ऐसा बॉम्बे में किधर नहीं गया हुआ जगह ही नहीं है। எல்லா மந்திரவாதி போனாங்க. हर जगह में वो जाके आए। பேருக்கு வந்தாங்க. जब प्रार्थना में आ गए ஆண்டவர் அழகான प्रभु ने अच्छा सुंदर सा एक बेटी दे दी। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க தாத்தா காலத்துல உள்ள இடம் விக்காம இருக்கு. और उनके दादाजी के जमाने से जो जमीन नहीं बिक रहा है, பேருக்கு வந்தாங்க வித்துச்சு. प्रार्थना में आने के बाद वो बिक गया। ஹalleluya. हालेलुया। குறைகாமல பெரிய இடம் வாங்கிட்டேன். अभी गोरेगांव में एक अच्छी बड़ी जगह लिया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் ஆசீர்வதித்தார். प्रभु आशीष देता है। அவர்கிட்ட வந்தா ஒரு நன்மை குறையப்படும். प्रभु के पास जब आते हैं कोई कुछ भलाई की कमी नहीं रहेगी। ஆண்டவர் வானத்தில் பூமியில சகல அதிகாரம் கொடுக்கும். प्रभु आकाश पृथ्वी पे सारे अधिकार आपके लिए दिया। ஆசீர்வதிக்கிறதுல கடவுள் ஆசீர்வதிக்கிறார். जो आपको आशीष देगा उसे वो भी आशीष எதை देगा। விசுவாசிக்கிறீங்க? एहसास करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। யாருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ जिनके पाप क्षमा हुआ है அவங்க பாக்கியவான். वे लोग धन्य हैं। எதை விசுவாசிக்கிறீங்க? एहसास करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் சாபம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சோ जितने के पास श्राप क्षमा हुआ है அதெல்லாம் மன்னிக்கப்படும். वो सभी उनके लिए क्षमा हो गया है। ஹalleluya. ஹalleluya. எவ்வளவு பெரிய கொடூரமான பாவமா இருந்தாலும் சரி, कितने भी बड़ी पाप होना दो, இயேசு நாமத்துல ஜெபம் பண்ணும் பொழுது यीशु के नाम से जब प्रार्थना करोगे எல்லாம் மன்னிக்கப்படும். उनके लिए सब क्षमा हुआ जाएगा। வாசிங்க, மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம். இது யோவான் 20ஆம் அதிகாரம். यवना निकालेंगे। யோவான் 20ஆம் அதிகாரம். यवना बीच का निकालो 20। இருபத்தி மூணு வாசிங்க. 20 का 23। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे हाँ। वे उनके लिए क्षमा किया गया है। हाँ। जिनके तुम रखो वे रखे गए। ஆமென். ஹalleluya. என்ன இருக்கு? जिनके साउंड और गाड़ वासी। हाँ, जिनके पाप और एक बार जोर से पढ़ेंगे। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। आमीन। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ஆமென். எவருடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுதோ மன்னிக்கப்பட்டதா? जिनके लिए आप क्षमा करेंगे प्रभु भी क्षमा कर देंगे। எவ்வளவு பெரிய பாவத்தோட நீங்க இருந்தாலும் பூமியில ஊழியக்காரர் வந்து மனுஷன் தான் மனுஷன் தான். कितने भी बड़ी पाप होने दो, अगर इस भूमि पे सेवक हमारे सामने आके बोला तेरे लिए क्षमा हो गया है, मतलब हो गया है। ஹalleluya. இது हालेलुया। விசுவாசிக்கிறீங்க? के लिए सास करते हैं। அப்ப இங்கே பாவ சாபம்லாம் ஆண்டு மனுஷன். तो इस भूमि में हमारे पाप श्रापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। எது के लिए விசுவாசிக்கிறீங்க? सास करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போறவங்க. क्योंकि हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं। பாவத்தோடு பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. हम पाप के साथ हम नहीं जा सकते। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த பூமியிலே நீங்க ஆசிரமா இருக்கணும். इस भूमि में हमें आशीष रहना है, பரலோகத்துக்கும் ஆசிரமா இருக்கணும். स्वर्ग में भी हमें आशीष रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம பரலோகத்துல ஆனதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு போனார். इसलिए प्रभु ने पहले ही स्वर्ग में हमारे ले गया। நம்மளும் எங்க போவோம்? हम सब कहाँ जाएंगे? ஹalleluya. स्वर्ग जाएंगे। யாக்கோபு ஒரு நாடு வாலிப பையன் படுத்திருந்தான். याकूब जो जवान लड़का एक अकेले में मतलब रात में अंधेरे में सोया है। ஒரு கல்ல எடுத்து தள்ள வச்சு படுத்து.
एक पत्थर के ऊपर ऐसे ही लेटा है। ஆண்டவர் தரிசனம் பெற்றார். प्रभु का दर्शन उसे வானம் मिला, திறக்கப்பட்டுச்சு. आकाश उसके लिए ஏணி खुल அங்கிருந்து गया, இறங்கி வந்துச்சு. वहां से एक सीढ़ी आया, அதுல தேவதூதர் ஏறுறது இறங்குனார். उसमें स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हुए उसने देखा। அவன் அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலேயே ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை பார்த்தான். उसने पुराना नियम में प्रभु की दर्शन पाया था। அந்த ஏணிக்கு மேல சர்வலம் ஜன கட்டது. उस सीढ़ी के अंत में वहाँ पे स्वर्ग के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। அவன் சொன்னார், वहाँ पे बताया, ஆபிரகாம் தேவன், मैं अब्राहम का परमेश्वर, ஈசாக்கின் தேவன், इसहाक का परमेश्वर சாவுடைய தேவன். और तेरे पिता का எந்த परमेश्वर। இடத்துல காலம் இருக்கு அந்த இடமெல்லாம் ஆசை. जहाँ पर भी तो जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। அலையிலுயா. அல்லேலூயா. இப்ப நாம காலுக்கு நிக்கிற எல்லா இடமும் எப்படி இருக்கும்? तो हम जहाँ पर भी जाएंगे हमारे लिए क्या है? ஆசிரமம். आशीष है। எவ்வளவு பெரிய பாவம் இருந்தாலும் ஓடி போ. कितना भी बड़ा पाप उधर रहने दो, वो पाप वहाँ से जाएगा। அலையிலுயா. அல்லேலூயா। அதான் ஏனோக்குன்னு பழைய ஏற்பாடுல ஒரு மனுஷன் இருக்கான். पुराना नियम का इनोक नाम का एक मनुष्य रहता है। அவன் பாருங்க தேவனோடு உறவாடிக்கிறான். उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा समय बिताता है। அலையிலுயா. हालेलुया। அவனுக்கு என்ன வயசுன்னா 365 வயசு. उसका उम्र जो है 320 उम्र है। அலையிலுயா. हालेलुया। ஆதியாகமத்துல 5ஆம் அதிகாரத்துல எழுதுறோம்ல, उत्पत्ति का निकालो 5 का 5:23. 23 पढ़ो। 5:23. 5:23। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 வயசு. அலையிலுயா. 365 வயசு உயிரோடு இருந்தான். तो 365 साल का था। அலையிலுயா. हालेलुया। இப்பெல்லாம் 40 வயசுல போகுது. अभी तो 40 उम्र में आदमी मर जा रहा। அலையிலுயா. हालेलुया। பாதி வயசுல பொக்கு போயிடும். और उतना भी नहीं कि जवानी में भी कोई कोई मर जा रहा है। ஆனா இவன் छोटी उम्र में। எத்தனை வருஷம் தானா? ஏனோக்கு उम्र कितने वर्ष तक था? 365 வருஷம். அலையிலுயா. हालेलुया। 365. 365 வருஷம். तो 365 इयर्स तक वो था। அலையிலுயா. हालेलुया। அவன் ஒரு நல்ல மனுஷன். वो एक अच्छा मनुष्य है, கடவுளுக்கு பயப்படுறான். परमेश्वर की भय मानता है। அலையிலுயா. हालेलुया। ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார், एक पास्टर ने बताया, பிரதர் எங்க சபையில யாரும் நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. ब्रदर हमारे कलीसिया में कोई स्थिर नहीं रहता है। எல்லாம் அப்படியே ஒரு சபையில மாறி போயிட்டு. सब थोड़े दिन के लिए आते हैं, फिर बाद में और कहीं कलीसिया में चले जाते हैं। அலையிலுயா. हालेलुया। ஏன் சொன்னார், யாரு முடிவு புரிந்து நினைச்சு நிக்கிறானோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஆசீர்வாதம் பெறுவார். क्योंकि यीशु ने बताया जो अंत तक स्थिर एक ही स्थान पे खड़ा होगा उसके लिए ही आशीष मिलेगा। அலையிலுயா. हालेलुया। எலியா சொன்னார், इलिया ने बताया, ஆண்டவர் என்ன பரலோகத்துக்கு கூப்பிட்டாரு. प्रभु मुझे स्वर्ग पे बुलाया है, வரப்போகுது, एक रथ आने वाला है, போறேன், मैं उस पे जाने वाला நீ हूँ, இங்கே இருந்து எலிசா கிட்ட சொன்னார். तुम यहीं पे रुकना करके एलिशा को बताया। எலிசா என்ன சொன்னா, एलिशा ने क्या நீங்க किया? எங்க போனாலும் நான் வருவேன். नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी वहाँ पे आऊंगा। சரி, நான் பரலோகத்துக்கு எழுந்தள்ளி போகும்பொழுது நீ என் கூட என்ன உன் கண்ணால என்ன பார்த்தீன்னா உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். तो उस एलिशा को बताया, मैं स्वर्ग में जब परमेश्वर मुझे साथ ले जाएगा तो मुझे देखते ही रहना, तभी मेरे आशीष तुझे मिलेगा। அலையிலுயா. हालेलुया। அவன் கடைசி வரைக்கும் யோர்தான் தாண்டி போயிட்டான். और देखो अंत तक जोरदान नदी पार करके उसके प्रभु जब उसे ले जा रहा तब तक वो साथ गया। யோர்தான் நதி கரபண்டு வரும். जोरदान का जो नदी बहुत तेजी से पानी दौड़ता है। யோர்தான்னா அதுக்கு பேர் மரண நதினார். उसका दूसरा भी एक नाम है मरण का नदी। அலையிலுயா. हालेलुया। அதுங்க அப்படி பொல்லாத நதி. யாரு கால வச்சு எழுதிட்டு போயிடும். क्योंकि वो इतना डेंजर है, कोई भी उस पे मतलब उतर नहीं सकते, वो पानी इतना तेजी से जाता है। ஊழியக்காரர் சால்வை பண்ணி இயேசு வந்து போ அப்படின்னு அடிச்சாரு. கண்டா போல. पर परमेश्वर का मनुष्य जब उधर जाके अपने सवाल को लेके जोर से यीशु के नाम से वहाँ पे मारता है, वो पानी रुक जाता है। அலையிலுயா. हालेलुया। இப்பெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்து ஜெபம் பண்ணு. अभी सब छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, देख के वो लोग भी करते हैं। போ விசாசனை அப்படி போய். अगर हम बोलते हैं हाँ जैसे शैतान जा यहाँ से, वो भी करेगा। அலையிலுயா. हालेलुया। அண்ணன் பையனுடைய பையன்லாம் அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணான். லாஸ்ட்ல கேட்கலாம். போ விசாசனை. हमारे भाई के जो लड़के के जो बेटा है, जो बेंजामिन है, वो सब देखता है तो वैसे का वैसे ही करता है। அடுத்த மாசம் வரும். अभी अगला महीना आएगा। அலையிலுயா. हालेलुया। ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அவங்க கீழே விழுவணும். और दूसरा चीज, वो जब प्रार्थना करेगा, पानी मारेगा, आपको नीचे गिरना ही है, அதான் அந்த ஜெபம் கேட்கப்படுதுன்னு அர்த்தம். तभी वो समझेगा हाँ प्रार्थना सुन गया है। ஏன்னா அவனே தள்ளி விட்டுருவான். नहीं तो वही गिरा देगा, நல்ல உடம்பு நல்லா இருக்கும். क्योंकि वो अच्छा लगता रहता है, தள்ளி விட்டுருவான். वही खुद गिरा देगा। அலையிலுயா. हालेलुया। அது பாப்பா அப்படிதான் மட்டுக்கா போயிட்டு சொல்லு. कल ऐसे बेरेका मटुगा का प्रेयर खत्म होके आ रहे हैं, அங்க படுத்துக்க மனுஷன் பார்த்து போ விசாசனை. प्रार्थना खत्म होके हम लोग ऐसे आ रहे हैं, सड़क पे ऐसे कोई जा रहा है, कोई लेटा है, उसको देख के बोला वो शैतान वो करके आ रही है। ஏன்னா மட்டுங்காட ஒரு விசாசம் வரும். और मटुगा पूछा तो और देखा तो वो मटुगा में एक शैतान को भगाया था, वो देख के ये कर दी। அதை பார்த்துச்சு.
वो देख लिया अच्छे से, ரோட்ல படுத்துங்க போறோம் வரோம் எல்லாத்தையும் போ பிசாசு. जो भी दिखा उसका सामने सबको बोले वो पिशाच करके। ஹalleluya. हालेलुया। யோர்தான் நதி அப்படிதான் இவர் பாட்டு போனாரு, அது ரெண்டா படந்துச்சு. इधर भी ऐसे ही हो गया। जोर्दान नदी जब एलिया के साथ में आया था, जोर्दान नदी दो भाग हो गया। ஒரே அறைதான், उसने सॉल लेके इतना ही जोर से मारा, நதி ரெண்டா படந்து. वो नदी क्या हो गया, दो भाग हो गया, उसका रास्ता हो गया। இவர் हालेलुया। பாட்டு போயிட்டார் கூடயே. इसको कुछ पता नहीं, ये तो आप उसके ही साथ चला गया। எலியா கூட सेवक எலிசா போயிட்டார். एलिया के साथ साथ ये भी चला गया। ஹalleluya. हालेलुया। என்னன்னா அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறணும்ல. क्यों चला गया? क्योंकि उसको आशीष चाहिए ना। ஹalleluya. हालेलुया। பின்னாடியே போயிட்டார். इसीलिए वो साथ चला गया। அங்க அதே மாதிரி ரதம் வந்துச்சு, அவர் கூட்டு போயாச்சு. अभी उधर जाने के बाद वो जैसा बता वैसे ही उधर स्वर्ग से आग से भरा हुआ रथ आया, वो रथ पे चढ़ के चला गया, அவர் பரலோகத்துக்கு போயிட்டார். वो स्वर्ग में चला गया। ஹalleluya. हालेलुया। பரலோகம் இருக்கா இல்லையா? स्वर्ग है क्या नहीं? ஹalleluya. हालेलुया। நம்மளும் இங்க தான் போவோம். हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हम भी वही स्वर्ग में जाने वाले हैं। பூமியில தான் யுத்தம், பிரச்சனை, கவலை, போராட்டம், பயம், திகில், செய்வன, பிசாசு எல்லாம். जब तक हम इस भूमि पे रहेंगे तब तक हमारे लिए ये जादू मुटोना, बदन दर्द है, बीमार है, संकट है, समस्या, ये सब आते ही जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா நமக்கு பரலோகத்துல அப்படி இல்ல. पर हम जब स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं, எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும். हम हर दम उधर आनंदित ही रहेंगे। பாவியான முதல மரியாதை போனான்னு एक पापी जो कहलाने वाली मरियम मगदलीना को प्रभु ने लिया तो அப்போ அம்மா போக மாட்டோம். हम नहीं जाएंगे? हम जाएंगे क्या नहीं? ऐसा बोलो जोर से। முதல்ல முதல மரியாதைக்கு தான் ஆண்டு தரிசனம் கொடுத்தார். देखो परमेश्वर यीशु ने पहला मरियम मगदलीना को दर्शन दिया। ஏன்? किस लिए दिया? அதுல 7 பேர். और उसी के पास 7 शैतानी था। ஹalleluya. हालेलुया। அவ பாவியான பொண்ணு. वो एक पापी स्त्री है, ஆனா இயேசு விட்டு நீங்காம இருந்தா. लेकिन यीशु को कभी छोड़ती ही नहीं थी। இயேசு ஒரு நாள் அவரை பார்த்தார். जब एक बार यीशु उसको मिला, பாவம். यीशु ने बताया तेरा पाप क्षमा हो गया, மகளேன்னு சொன்னார். बेटी करके बुलाया। ஹalleluya. हालेलुया। பெரிய சந்தோஷம் பண்ணாங்க. एक बहुत बड़ा आनंद उसको आ गया। உலகத்துல யாரும் உள்ள பார்த்து மகன் சொல்றாரு. वो पूरा सोचने लगी, इस दुनिया में कोई भी मुझे बेटी करके बुलाया ही नहीं। எல்லாம் பிசாசு சொல்றாங்க. सब मुझे बोल जाता है ये शैतानी है, எல்லாம் பாவி. ये पापी है। உலகத்துல யாரும் பாவத்தை பார்த்தாங்க மன்னிப்பாங்களா? इस दुनिया में अगर हम कुछ पाप गलती करते हैं हमको ऐसे क्षमा कर देंगे? नहीं। ஆகிற வரைக்கும் பாவி பாவி பாவி. हम मरने तक वो बोल बोल के बताएंगे, ऐसे ही मार देंगे हमको। அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும். हाँ मैं जानता है तेरे बारे நீ में। அன்னைக்கே நீ இப்படி अरे उस दिन तो ये किया था, நீ போன மாசம் எப்படி? अरे गए महीना ये किया था, ஹalleluya. हालेलुया। 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி अरे இருந்தது? 10 साल का पहले ये किया था। நம்ம மனுஷன் மன்னிக்க மாட்டாங்க. मनुष्य जो है हमको क्षमा करते ही ஆனா नहीं, தேவன் लेकिन परमेश्वर உங்க பாவங்கள் எல்லாம் முழுக்க முன்னாடி वो आपके हर पापों को क्षमा करके अपने पेट के पीछे डाल देता है। कितने विश्वास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா நீங்க எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைங்க. क्योंकि आप सब परमेश्वर के बच्चे लोग, தேவனால் அழைக்கப்பட்டார். परमेश्वर से चुने गए बुलाए ஆசீர்வாதத்தை உள்ளவர். आशीष के बच्चे लोग। ஹalleluya. हालेलुया। ஆபிரகாம் தேவன், ஈசாக்கு தேவன், யாக்கோபு தேவன், நம்முடைய தேவன். अब्राहम, ईसा, याकूब का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर। எந்த விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने विश्वास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் வந்து அத்தனை பேரையும் தொட்டு பரலோகத்துக்கு. उसके पास आए हुए हर एक को वो छूता है और स्वर्गीय मार्ग बताता है। எந்த விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने विश्वास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம வீடு எங்க இருக்கு? हमारे लिए घर कहाँ पर है? ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு 365 வருஷம் ஆண்டவரோடு இருந்தான். enoch के बारे में देखो, वो कितना वर्ष परमेश्वर के साथ बिता। நீங்க கேட்கலாம், ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணலையா? आप पूछ सकते हैं क्या enoch का शादी नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था? ஹalleluya. हालेलुया। 365 வருஷம் ஆண்டவரோடு இருந்தான். वो इतना वर्ष परमेश्वर के साथ निकाला। ஹalleluya. हालेलुया। பாஸ் சொன்னார். वो पास्टर ने एक 2 வருஷம் ஒருத்தர் நிரந்தரமா என் சபையில இருக்க மாட்டார். पास्टर ने बताया 2 साल भी मेरे कलीसिया में कोई टिकता ही नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। பிறாரோட சொன்னார். मेरा रोड में எல்லாம் இங்க போறாங்க, அங்க போறாங்க, ஒரு இடத்துல நிறுத்தல. सब इधर आते फिर बाद में और कहीं चले जाते, टिकते नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா लेकिन எனக்கு 365 வருஷம் ஆண்டவரோடு இருந்துச்சு. इधर enoch को हम देखते हैं वो परमेश्वर के साथ कितने वर्ष बिताया है। ஹalleluya. हालेलुया। எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம். कितने बड़े आशीष है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம ஆண்டவரோடு இருப்போமா? हम परमेश्वर के साथ ऐसे रहेंगे। அன்னைக்கு எலியாவோடு எலிசா இருந்தார். उन दिनों में एलिया के साथ एलिसा बना था। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால அவர் அந்த தேவ தரிசனத்தை பார்த்தார். इसीलिए उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। பரலோகத்துல இருந்து அக்கினி குதிரை வந்துச்சு. स्वर्ग से देखो आग से भरा हुआ, अग्नि से भरा हुआ रथ அந்த आया, அப்படியே போயிட்டார். उसी रथ में वो एलिया चला गया। ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படியே ஆண்டு பரலோகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார். परमेश्वर उसे ऐसे ही ले चला गया। அவருடைய ஊழியக்காரன் और उसके ही साथ होने वाला एक दास है எலிசா. एलिसा। அது சாலோ மட்டும் பறந்தது. सिर्फ एलिया का जो सॉल है वो ऊपर से गिर रहा है, इसके पास आ रहा है। அவர் என்ன செஞ்சாரு? யோர்தான் கரை ஓடி. अभी इसने वो लेकर क्या किया, जब ये वापस आ रहा है जोर्दान का नदी जो पानी तेजी से जा रहा है,
ஹalleluya हालेलुया। எலியாவின் தேவன் எங்கன்னு சொல்லி ஊழியக்கார் பேர் சொல்லி ஒரே அடி அடிச்சார் अपने सेवका के नाम से उसने उधर जोर से मारा। एलिया का परमेश्वर मेरे साथ है करके जोर से मारा। ஹalleluya ஹalleluya। அடி ரெண்டாவது वो पानी फिर से दो भाग हो गया। எலியா அற்புதம் செஞ்சதை விட எலிசா நிறைய காரியம் பண்ணார். जो एलिया चमत्कार किया था, जितना अद्भुत कार्य किया था, उससे भी बढ़ के अधिक एलिसा ने किया। ஹalleluya हालेलुया। எலிசா காலத்துல எலியாவுடைய வேலைக்காரன் எலிசா காலத்துல एलिया के पास जो सेवका जो काम करता था, सेवा करता था, जो एलिसा है, ஒருத்தன் செத்து போனான். जो एक व्यक्ति मर गया, ஒரு பிலிவர் செத்து போனார். एक बिलीवर था वो मर गया है। அந்த காலத்துல யாரும் பிலிவரை புதைக்க கூடாது. उस जमाने में बिलीवर लोग को मतलब परमेश्वर के विश्वासी लोगों को गाड़ना नहीं चाहिए, அவங்கள எரிக்கணும். उनको जलाना। இங்க தெரியாம கொண்டு போறாங்க பிரேஸ். तो उधर उस टाइम पे क्या हुआ, एक लाशों को चारों जन उठा के लेके जा रहे चुपके से, மிலிட்டரிக்கு தெரியாம கொண்டு போறாங்க. क्योंकि वहाँ के जो सेना था तो सेना से चुपके से लेके जा रहे हैं, பிரேத தூக்கி போறாங்க. छुपा के लेके जा रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। அந்த பிரேத கொண்டு போகும்போது जब ये लोग उस लाश को लेके जाते கையில हैं, மிலிட்டரிக்கார வரான். अभी सामने उनका सामने जो वो सेना दिखने लगा, லபாய் கூட வரான். वो लोग बंदूक लेके खड़ा है। இவர் என்ன பண்ணாரு, तो ये लोग ने क्या किया, இந்த நாலு பேரும் ये चारों भी ஒரு கலர் वहाँ पे एक कब्रिस्तान, அந்த கலரை பார்க்கல. वो कब्रिस्तान को उन्होंने देखा नहीं किसका था, மிலிட்டரிக்காரங்களை பார்த்துட்டு जस्ट उन लोग ने वो आर्मी लोग को देख लिया। அந்த கொண்டு வந்த பிரேத அந்த கலர் மேல போட்டு ஓடிட்டாங்க. जो उठा के लाए उस लाश को वहीं पे डाल के वो लोग भागने लगा। நாலு பேர் ஓடுறாங்க. वो चारों भी भाग रहे हैं। நாலு பேருக்கு முன்னாடி ये चार जन जो दौड़ते हैं, அஞ்சாவது நபர் ஓடிக்கிட்டு लेकिन इन लोग के आगे एक इंसान दौड़ रहा है। நாலு பேர் பாக்குறாங்க. ये लोग चारों अभी देख रहे हैं। நாலு பேர் தான் வந்தோம். हम चार जन ही तो इधर आए थे, இவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்கு. इतना दूर लंबा चल के आए थे। ஓட யார் பாரு, जो पांचवा आगे कौन भाग रहा है, அவனை பிடிச்சு பாக்குறாரு. उसको पकड़ के ऐसे रुकाया। அவன் யாரு, वो कौन है, அந்த பிரேதம். அந்த பிரேதம். जो लाश को उठा के लाए तो वही आगे भाग रहा है। ஹalleluya हालेलुया। நீ என்ன ஓடியாரு, अभी उसको पूछा तू कैसा भाग रहा நீ है, செத்து 4 நாள் ஆச்சு ஆடிட்டு கிடந்த. तू तो मर के 4 दिन हो गया, इतना बास मार रहा எங்க था, ஓடுற கிளம்பு अभी हमारे आगे तू क्या दौड़ रहा ஓடி है, அப்படின்னு சொன்னேன். उसको पकड़ रहा है। நான் சொல்றேன், நீ என்ன போட்டி இல்ல கலரே இல்ல. अरे तुमने तो मुझे वो कब्रिस्तान में डाल दिया ना। ஆமா அது அந்த கலரில ஒரு பரிசுத்தவான் கலர். वो कब्रिस्तान जो है एक पवित्र मनुष्य का कब्रिस्तान है। ஹalleluya हालेलुया। எலிசாவுடைய கலர். एलिसा का कब्रिस्तान है। எலியாவின் தேவன் எலிசா கலர். एलिया का परमेश्वर एलिसा के साथ भी है, இன்னைக்கு அந்த பாபிலோன் கலர். और आज भी वो कब्रिस्तान को संभाल के रखे। ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு தானியேல் கலர்ல பிரேதங்களை போட்டு அப்படியே அடிச்சு ஆடு. आज भी ऐसा भी सुनाई में है कि दानियल के कब्रिस्तान में भी कई लाशों को लेके जाके रखते हैं, वो जी उठता है। ஈரான்ல இருக்கு. ईरान में है, நிறைய பையில முட்டு கட்டி போடுவாங்க. ईरान में ऐसे सुनाई देता है, हालेलुया। कई लोगों को ले जाते हैं। நாம இன்றைக்கும் தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறார். देखो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। நீங்க எந்த இடத்துல உட்காரீங்களோ அந்த இடம் ஆசிரமம். अब जिस जगह में भी बैठेंगे प्रभु कहता है उधर आशीष आएगा। எந்த இடத்துல படுக்கிறீங்களோ அந்த இடம் ஆசிரமம். जिधर भी आप लेते हैं प्रभु कहता है वहाँ पर आशीष आएगा। ஹalleluya हालेलुया। பெங்களூர்ல ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டு போனேன். मैंगलोर में एक घर पे लेके गए, நைட் 1 மணிக்கு கூட்டு போனேன். रात को 1 बजे। அவங்களுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு ரூம் கொடுத்தாங்க. हमारे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था, एक अच्छा रूम था, बहुत अच्छा रूम। குளிச்சு முடிஞ்ச எல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படின்னு. ना धो के होने के बाद फिर उन्होंने बहुत खाना का तैयारी सब किया। பெங்களூர்ல சாப்பாடு நல்லா இருக்கும். मैंगलोर में खाना बहुत अच्छा रहता है। ஹalleluya हालेलुया। மாடலுக்கு அந்த சிஸ்டர் और उसमें वो बताना चाहिए था हमारा बलिदान दिया, उनका घर में मैंगलोर का खाना मिलेगा, இது விதமா செஞ்சிருப்பாங்க. एकदम बहुत वैरायटी बना के எல்லாரும் खिलाएगा, yes. सब कुछ अच्छा ही இதே रहता மாதிரி है। அங்க நாங்க பெங்களூர்ல சாப்பிட்டோம். वैसे ही मैंगलोर में था। அப்ப அந்த வீட்டு ஓனர் தான் சொன்னாங்க, तो उस घर का जो ओनर था, जिसका घर है, आगे उसने सापड़ामा? बताया, उसने आके बताया ब्रदर हम भी आपके साथ में बैठ के खा सकते हैं। உங்க வீடு बोला घर आपका है, அங்க போய் மாளிகை இருக்கு. इतना बड़ा महल है। மகினா சௌத்ரின்னு ஒரு சினிமா ஆக்டர். महिमा चौधरी करके एक एक्टर है, அந்த ஆக்டருக்கு எய்த்து उस एक्टर का एक बंगला है, उसके सामने का बंगला इसका, பெரிய பங்களா. एकदम बड़ा बंगला। அங்க என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா वहाँ पे एक समस्या தண்ணி है, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடும். पानी नल अपने आप खुलेगा। ஹalleluya हालेलुया। பேப்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நிக்குவாங்க. न्यूज़पेपर अपने आप ऐसा खड़ा रहे, ऐसा ही रहता, दिखता है कि कोई उधर पढ़ रहा है, துண்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்ரூம். और टवर अपने आप ऐसा हवा पे जाएगा। ஹalleluya हालेलुया। சாப்பாடு சாப்பிட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன். ये लोग जब खाना पीना सब बना के बैठते हैं खाने के लिए, तो खाना कुछ गंदा बन जाता है, मतलब हालेलुया। चिकन ऐसा कुछ गंदगी बन जाता அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. है। इसलिए उन्होंने बताया இதுதான் நாங்க உங்களோட சாப்பிடுறோம். ब्रदर क्या हम भी आपके साथ बैठ के खा सकते हैं। ஹalleluya हालेलुया। தாராளமா சாப்பிடலாமே. आपको ना बिंदास आप बैठ के खाओ, எல்லாம் சாப்பிட்டோம். सब लोग मिलके खाया। பாருங்க அன்னைக்கு தான் போயிருக்கோம், அன்னைக்கு நல்லா இருக்கு. अब देखो उसी दिन हमने गया है,
उसी दिन में ये पहला चमत्कार हम लोग के बेड के साथ में बैठ के उन लोग ने खाया। பிரதர் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் இப்பதான் சாப்பிட்டோம். वो बोले ब्रदर कितने साल हो गया हम लोग टेबल में हमारे घर पे बैठ के खाके। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா தேவனுடைய பவர் क्योंकि परमेश्वर का पावर के सामने कुछ கால் नहीं। மிதிக்கிற இடத்த கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर ने बता दिया जिधर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ ऐसा आएगा। विश्वास। कितने साथ करते हैं। அதே போல பாருங்க और वैसे ही देखिए அந்த பெங்களூர் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு खाना सब अभी हो गया। சரியான பசி இல்லையா நல்லா சாப்பிட்டேன். बहुत भूख लगा था बहुत अच्छे से खा लिए। ஹalleluya. हालेलुया। சாப்பிட்டு படுத்தேன். अभी खाने के बाद नींद आ गया। 10 மணிக்கு நான் எழுந்து பார்க்கறேன். रात को 10 बजे ऐसे हम उठ के देखा। அந்த காலையில सुबह सुबह मतलब सो गए थे सुबह 10 बजे ऐसे उठ के देख रहे हैं। எழுந்து பார்க்கறேன். सुबह उठ के ऐसे ही देखे கண்ணாடி மாதிரி वो पूरा मतलब चारों तरफ पूरा कांच से ही वो दीवार जैसा बना है। ரூம் வந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி चारों तरफ पूरा कांच ही है मतलब अंदर से बाहर देख सकते हैं। முடிச்சு பார்க்கறோம். अब देखा நிறைய ஜனங்க போய் கூட்டமா இருக்காங்க. उठ के देखा तो बहुत सारा लोग वहाँ पे पूरा घूम फिर के खड़ा है। கண்ணாடியை சுத்தி நிறைய ஜனம் இருக்கு. वो पूरा कांच के अंदर से आपको अंदर देख रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நிறைய ஜனம் இருக்காங்க. वो पूरा बहुत लोग खड़े हैं। நான் சொன்னேன் இதான் கேளு பாருங்க எல்லாரும் கூட்டம் இருக்கு. पूरा चारों तरफ आके खड़े हैं। तो हमने हमारे लड़के को उठा के बुला रहे देखो जाके पूछो ये क्या वो लोग देख रहे என்னன்னு கேளு. हैं। वो लोग आके क्या देख रहे हैं। அப்ப அந்த அம்மா ஒரு அம்மா சொல்றாங்க तो उनमें से एक माँ जी ने बताया இதுல படுத்து எல்லாரும் சுத்துவாங்க. नहीं यही कमरे पे जो भी आके सोता है वो सुबह ही मर जाता है। ஒரு பாட்டி அம்மா செத்து போச்சு, மாமா आपकी செத்து போச்சு, सुनता नहीं சித்தப்பா है। செத்து போச்சு, அண்ணன் செத்து போனான். एक दादी मर गया है एक मतलब एक नानी उधर नानी जो आया था वो मर गई और एक आंटी जो आई थी वो मर गई एक भाईजान आया था वो मर गया। அதனால இதுல யாரும் படுக்க மாட்டாங்க. ऐसे कई सारे को बता रहे बोल रहे इसलिए इस कमरे पे कोई सोने नहीं आता। நாங்க காலையில 3 தடவை உங்களை வந்து பார்த்தோம். हम सुबह सुबह उठ के 3 बार आपको आके देख के गया। உங்க கூட வந்த பையங்க யாரா கொஞ்சம் அசைவானான்னு பார்த்தோம். हम ऐसे ही आवाज नहीं दिया लेकिन देखा क्या आप लोग हिल रहे हैं नींद में जो हिलते हैं ऐसा उधर इधर हिलते हैं। உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தோம். आपके शरीर में जान है क्या नहीं। அதனாலதான் இந்த ஊர் ஜனங்களே கூப்பிட்டோம். इसलिए पूरे गांव आके खड़ा है आपको देखने। நைட்டு ஜெபம் பண்ண வந்தவங்க செத்து போயிட்டாங்க. रात को और हम लोग के अंदर बात भी हो गया था हाँ ये लोग भी मर गए। நாங்க முடிவு பண்ணோம். हम लोग पूरा यही बात करके ले எல்லாம் எழுந்திருக்கணும் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. फिर बाद में हम लोग बोला बाबा सब लोग उठो नहीं तो वो लोग बोलेंगे हाँ मर गए लोग भी। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியா அதுல படுத்தவங்க செத்து போறாங்க. फिर बाद में वो गाने हम लोग को बराबर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सोने वाले मरते हैं। அதுல இருந்து பெங்களூர்ல ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. और तब से बैंगलोर में एक आदत हो गया எங்களை எங்க கூப்பிட்டாலும் उस गांव में ஏன் வீடு படுத்து जो भी बैंगलोर में बुलाएगा तो बात यही होता है अरे ब्रदर आया ना वो कमरे पे जाके सुलाओ पहले। படுத்த ஒரு ஆஸ்பத்திரி. वो कमरे पे जिस कमरे में सोएगा उधर आशीष आता है। ஹalleluya. हालेलुया। பெங்களூர்ல புக் பண்ணாங்கன்னா எப்படி 2 நாள் 3 நாள் வீட்டுல தங்க வைப்பாங்க. बैंगलोर में बुलाएंगे तो ऐसे ही नहीं एक दिन 2 दिन के लिए वो ऐसे ही रख देते அவங்க वहीं। விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட பேய் பிரதர் தான் போகும். उनका विश्वास ऐसा है कि ब्रदर आया मतलब बुराई पूरा हमको निकलना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த மதுரை மரியாக்குள்ள எத்தனை பேர் இருந்துச்சா? मरियम मगदलीना के अंदर कितना शैतानी था। மார்க் வாசிங்க. மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனம். मार्कुस का निकालो मार्कुस का निकालो மார்க் 16 16 9 का 9 अध्याय 16ல 9 10 16 का 9 16ல 9 10 9 10 मार्क सप्ताह के पहले दिन और होते ही वो जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी के जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। आमीन। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। ஆமென். ஹalleluya. மதுரை மரியாக்குள்ள 7 பிசாசு இருக்காங்க. मरियम मगदलीना के अंदर 7 शैतानी था। ஹalleluya. हालेलुया। அது பிசாசு பாத்து பண்ணிட்டே இருக்கும். शैतानी हमें देखता ही रहता है। நமக்கு பிரேயர் இல்ல. अगर हमारे जीवन में साथ प्रार्थना इसे नहीं बोलो। शैतानी अपने आप आ जाए। ஹalleluya. हालेलुया। அத ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमेशा प्रार्थना करें, பைபிள் வாசிக்கிட்டே இருக்கணும். बाइबल पढ़ते ही रहना है। ஜெபம் இல்லைன்னா प्रार्थना नहीं இந்த சண்டை பிரச்சனை போராட்டம் அவமானம் ஏதாவது ஒன்று வரும். घर में कुछ न कुछ ऐसे ही चालू हो जाएगा। झगड़ा गुस्सा बीमार कुछ भी चालू हो जाएगा। பிசாசு தள்ளி விட்டு போயிடும். शैतानी आएगा ऐसे ही बीमार में डाल देगा। பிசாசு பிடிச்சவங்கள நீங்க நல்லா பார்க்கலாம். शैतानी लोगों को हम अच्छे से देख सकते हैं। நல்லா தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. वो लोग आप प्रार्थना में आएंगे ना नींद आ जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। வீட்லயே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. घर में भी नींद आता ही है। ஹalleluya. हालेलुया। எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. हमेशा नींद में ही नींद। 10 மணிக்கு மேல தூங்குறது எழுந்திருக்கிறது எல்லாம் பிசாசு. 10 बजे के बाद जो उठने वाले सभी कैसा है शैतानी में ही।
हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने में अपने बोलते हैं वो शैतान ने क्या करता है, हाथ पकड़ के ऐसे लटा के सो जा। हालेलुया हालेलुया। अब कौन और माता को बोलते हैं अब नींद में हमको मालूम नहीं पड़ता है, हम इधर गिरते हैं क्या उधर गिरते हैं, किधर गिर रहे ब्रह्मा சொல்றாங்க हैं। एक माँ जी बताती है, பிரதர் நான் முன்னாடி எல்லாம் பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ மாத்திரை போடுவேன் ब्रदर पहला मैं प्रार्थना में आने से पहले इतना गोली लेके आता था, இப்ப மாத்திரை எல்லாம் போடுறேன் अभी मैं गोली नहीं लेता है। பைபிள் எடுத்த உடனே वो मालूम नहीं, बाइबल ऐसे लेके बैठा தூக்கம் हूं। எப்படி வரும் தெரியாது कैसा नींद आ रहा है मालूम नहीं। हालेलुया हालेलुया। நாளையில மர்ம சத்தம் போடுறேன் सुबह मेरा भाव उठ जगाता है और मुझे डांटता है, பைபிள் எங்க தூக்கி போட்டுருக்கேன் अरे मम्मी बाइबल को कहाँ डाल दिया तुमने। हालेलुया हालेलुया। எனக்கு தெரியல मुझे पता ही नहीं चलता है मेरा बाइबल किधर பைபிள் गया। எடுத்தாலே பிசாசு கண்ணு மேய்ப்பிடிக்கும் बाइबल हाथ में ले लो, शैतान ही नींद लाएगा। எந்த விசுவாஸ் கிடைக்கும் किधर विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। பரிசுத்தாவி இருந்தாதான் பைபிள் எடுக்க முடியும் पवित्र आत्मा जब रहेगा तभी ये बाइबल हाथ में रख के पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। அதான் இயேசு சொன்னார் इसलिए यीशु ने बोला பரிசுத்தாவியை உறுதி பெற்றுக்கொள்ளும் पवित्र आत्मा को पालो। हालेलुया हालेलुया। பரிசுத்தாவி கொடுத்த வந்ததா பலன் அடையும் जब पवित्र आत्मा आएगा तभी हम सामर्थ पाएंगे। அப்படிதானே ऐसे है ना। அப்போஸ்தலர் 1:8 வாசிங்க वृद्धों का निकालो पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। எல்லாரும் எடுத்து வாசிங்க எல்லாரும் இருக்காங்க அப்போஸ்தலர் 1:8 सभी निकालिए, सभी को पढ़ के देखो। பரலோகத்துக்கு போற முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்து தான் சொன்னார் स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर यीशु ने बताया பரிசுத்தாவி உங்களுக்குள்ள வந்தாதான் பலன் அடைய முடியும் पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा எத்தனை तभी பேர் உடம்புல பரிசுத்தாவி இருக்கு? सामर्थ पाएंगे। कितने लोग के पास पवित्र आत्मा है, कितने लोग पाए हैं। हालेलुயா हालेलुया। எத்தனை பேருக்குள்ள பரிசுத்தாவி இருக்கு कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हैं। பரிசுத்தாவி இல்லைன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது पवित्र आत्मा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல व्यवस्था बताता है जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं है। हालेलुया हालेलुया। பரிசுத்தாவி வேணுமா வேண்டாமா तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहिए क्या नहीं। हालेलुया हालेलुया। ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க एक बहन ने बताया, "பிரதர், எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தாங்க ब्रदर मुझे अभी लड़की देखने के लिए घर पे आए। हालेलुया हालेलुया। எங்க அத்தம்மா मेरा मतलब मेरा आत्या का बेटा ही आया है, அவன் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டா மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தாங்க वो आ गया। इसका मतलब अभी वो पूरा कंफर्म करके जाएगा शादी का। அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் मुझे कुछ तो करो, मुझे बचाओ। நான் பிராமணன் படிச்சேன் मैं एक ब्राह्मण का लड़की, நான் இயேசு ஏற்றுக்கிட்டேன் लेकिन मैं यीशु को स्वीकार எங்க किया। அம்மா சொன்னாங்க என் தம்பியை தான் கட்டணும் लेकिन मेरा माँ एक पैर पे खड़ा है, उससे तेरा शादी करना है। எல்லாம் வந்தாங்க என்ன பண்றது अभी सब आ भी गया, क्या करना है। நான் ஜெபம் பண்ணேன் अब बोला सब बस प्रार्थना ही करो। हालेलुया हालेलुया। நான் எம்ஜிஆரா हम थोड़ी एमजीआर है, நிறைய இல்ல ரஜினிகாந்த் हम थोड़ी रजनीकांत है, அமிதாப் பச்சன் हम अमिताभ बच्चन है। हालेलुया हालेलुया। ஓடி வந்து உன்னை ऐसे காப்பாத்து भाग कर आएंगे, उड़ के आएंगे, तुमको बचा लेंगे। हालेलुया हालेलुया। அதே நீ ஜெபம் பண்ணு तुम प्रार्थना करो, பரிசுத்தாவி வருவார் तुमको संभालने के लिए पवित्र அவர் आत्मा உனக்கு आएगा। ஹெல்ப் பண்ணுவார் वो तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। ஒரு டான்ஸ்ல ஜெபம் பண்ணிட்டே तो उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணாரு अभी जो आया हुआ दूल्हा क्या हुआ, மாலையோட வர वो हार लेके आ गया। பொண்ணுகிட்ட வரவும் वो जैसे ही लड़की के पास आया, करीब आया, करीब आते ही पूरा हिलने लगा। हाथ उसका हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, டக்கு டக்குன்னு ஆடிட்டு மாலையை பிடிச்சு जोर से ऐसे हिलते हिलते नीचे पूरा गिर के पूरा वैसा वैसा करके पूरा ये करने लगा। हालेलुया हालेलुया। ஏன்னா இந்த பொண்ணு டங்ஸ்ல பேசு इतना उछलने लगा, अंदर की शैतान हिल रहा, क्योंकि ये अन्य भाषा में प्रार्थना करती। பொண்ணு அந்நிய பாஷையில பேசு ये लड़की अन्य भाषा में प्रार्थना करती। பரிசுத்தாவிக்கும் அசுத்தாவிக்கும் ஒத்து வர अन्य भाषा में इतना प्रार्थना किया, मालूम पड़ गया पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा क्या है। எத்தனை விசுவாசம் इसके लिए सास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। உங்க அம்மா அப்பா சொல்லுங்க ஏ இவன் பேய் பிடிச்சவன் तभी उसके माँ बाप को पता है, अरे ये शैतानी से मेरा बेटी का शादी क्यों कराएगा। हालेलुया हालेलुया। ஓடி அப்படி வந்து भाग करके भगा दिया, அவன் ஓடியே போயிட்டான் वो भाग गया। இந்த பொண்ணு சொல்லு போ சைத்தான் அப்படி ये लड़की भी भाग गई, ये भी बोल दिया "हाँ, शैतान जा घर से मेरा"। அதோட ஓடி போயிட்டான் तब से गया वो। हालेलुया हालेलुया। இப்ப பரிசுத்தாவில நீங்க ஜெபம் பண்ணீங்கல்ல கர்த்தர் உங்களோட கூட आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना जब करते हो, परमेश्वर आपके साथ आ रहा அதனாலதான் பரிசுத்தாவி எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ளணும் है। इसलिए हम बताते हैं कि पवित्र आत्मा सबके पास होना நீங்க चाहिए। தனிமையில் இருக்கும்போது உங்களோட பேசுவார் आप अकेले में रहते समय पवित्र आत्मा आपसे बात உங்களோட करेगा, உறவாடுவார் वो आपके साथ रहेगा। அதான் இயேசு பரலோகத்துக்கு போகும்போது அந்த பரிசுத்தாவியை ஊதி பெற்றுக்கொள்ளுங்க इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग जाते समय पवित्र आत्मा को बताया और बोला कि सब लोग पालो। हालेलुया हालेलुया। உலகத்தை விட்டு பரலோகத்துக்கு போகும்போது ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தார் इस संसार को छोड़ के जब स्वर्ग जा रहा था, दोनों हाथों बढ़ाकर
सभी अपने चेलों को आशीष दे दिया நீங்க தான் எனக்கு சாட்சி சொல்றீங்க और बताया कि तुम मेरे गवाह हो ஹalleluya हालेलुया। உலகம் முழுவதும் எனக்கு நீங்க தான் சாட்சி पूरे इस दुनिया के लिए मेरे गवाह तुम हो ஹalleluya हालेलुया। அதுதான் இந்த மாதிரி கூட்டத்துல சாட்சி மெயின் इसलिए ऐसी भीड़ में गवाह देना बहुत जरूरी है வியாதியில பணம் மாத்தினார் मुझे ऐसे बीमार में प्रभु ने चंगा दिया मेरे लिए प्रभु अच्छा घर दिया பாக்கியத்தை கொடுத்தாரு मुझे अच्छा प्रभु ने बच्चा दिया ஆட்டோ கொடுத்துட்டாரு मुझे अच्छा प्रभु ने रिक्शा दिया मेरे लिए प्रभु गाड़ी दिया ஹalleluya हालेलुया। சொல்லிக்கிட்டே விசுவாசம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் हम विश्वास में हमेशा कहते रहना बोलते அறிக்கை रहना பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் हम हमेशा उसे कबूल करना है நீங்க அற்புதம் நடந்து சொல்லலைன்னா அடுத்த அற்புதம் நடக்காது आपके अर्पुत कार्य को आपके जीवन में हुए हुए अर्पुत कार्य का अगर आप नहीं बताते हो नहीं गवाह देते हो उसके अगले अर्पुत कार्य नहीं होगा ஹalleluya हालेलुया। சொன்னாரே இல்லையா बताया क्या नहीं அப்போஸ்தல 1 அதிகாரம் 8 வசனம் வாசிங்க பாப்போம் 8वां वचन फिर से पढ़ो நீங்க தான் எனக்கு சாட்சி परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे ஆமா கவானா என்னது ஆகவா साक्षी சாட்சி டெஸ்டமனி ஹalleluya हालेलुया। டெஸ்டமனி அங்க சொல்லணும் तो इसीलिए हम हमेशा उसके गवाह बन के रहना है ஹalleluya हालेलुया। டெஸ்டமனி சொன்னாதான் மத்தவங்க ஆகா இவங்களுக்கு அற்புதம் செஞ்சவர் எனக்கு அற்புதம் செஞ்சார் जब हम गवाही कहे बोलेंगे तभी बाकी लोगों के अंदर वो विश्वास प्रभु लाएगा और वो भी बोलेंगे कि मुझे भी ऐसे विश्वास டெஸ்டமனி है। சொல்றதுக்கு வெட்கப்படக்கூடாது हाँ मतलब गवाह बोलने के लिए गवाही बताने के लिए कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ஹalleluya हालेलुया। எனக்கு இதுல இருந்து ஆர்டர் விடுதலை கொடுத்தா அடுத்த விடுதலை கொடுப்பேன் अगर आप बताते हो प्रभु ने मुझे ऐसे ये समस्या से मुझे छुड़ाया अगली जो भी समस्या आएगी उसमें भी छुड़ाया விரார்ல இருந்து ஒரு பிராமண குடும்பம் வருவாங்க பாத்து विरार से एक ब्राह्मण परिवार आता है पता है யார் பேர் कौन என்ன है ஆண்டி பேர் என்ன मनीषा आंटी மனுஷா ஆண்டி விரார்ல இருந்து வருவாங்க मनीषा आंटी பிராமண குடும்பம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாங்க एक ब्राह्मण परिवार के हैं लेकिन यीशु को स्वीकार किया நான் சொல்லுவேன் இப்படி கடவுள் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் ஆசீர்வாதம் बस हम उनको इतना ही प्रार्थना करके बोल के आते हैं ये महीने में प्रभु आपको ये आशीष देगा ये आशीष देगा ऐसे एक एक आशीष हम बोल के आते हैं ஒரு சின்ன கமெண்ட் ஆரம்பிச்சு छोटा सा एक कान का मतलब सोने का जो बनाया था उसमें शाडो हुआ आशीष இப்ப நிறைய நகை अभी बहुत सारे गहना बढ़ गया அலையிலுயா हालेलुया। சிந்து துர்கால ஒரு வீடு வாங்கிட்டாங்க सिंधु दुर्गा में घर ले लिया அலையிலுயா हालेलुया। வீட்டுல இருந்தாங்க छोटे से जो घर पे रहता था அவங்க மகளுக்கு பெரிய பங்களா வீடு बेटी को अच्छे बहुत बड़ा बंगले का एक रिश्ता आ गया அலையிலுயா हालेलुया। இப்போ அவர் அமெரிக்கால வேலை செய்யறாரு अभी उसका पति अमेरिका में काम करता அவங்க வீட்டுக்காரர் அமெரிக்கால இருப்பானா அமெரிக்கா போயிட்டாரு है उसको बोला था तेरा पति को अमेरिका में काम मिलेगा वो अमेरिका जाएगा वो அலையிலுயா अमेरिका में ही இதான் ஆசீர்வாதம் इसे बोलते हैं आशीष ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதம் அதனால அந்த ஆண்டி வந்து என்ன வாங்கினா இவன் ஆசீர்வாதம் इसीलिए वो मनीषा आंटी भी जो भी उसके साथ होता है वो आगे सीधा गवाही बोल देता है அலையிலுயா हालेलुया। வர வர வெறுக்கிறது பழகி பெரிய ஆசீர்வாதம் तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है वो आशीष भी बढ़ता जाता है அதே போல கர்த்தர் உங்களுடைய வேலையை ஆசீர்வாதம் और वैसे ही प्रभु आपके काम में भी आशीष देगा பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதம் आपके बच्चे लोग को आशीष குடும்பத்தை देगा மேன்மைப்படுத்துவார் आपके परिवार को ऊंचा करेगा தொழிலாம் பழகி பெருகணும் आपके काम में एक बढ़ावत आएगा எந்த விசுவாசத்துக்கு फिर विश्वास करते हैं அலையிலுயா हालेलुया। எனக்கு ஒரு கடை போதும் ஆண்டவர்னு உட்கார்ந்திருப்பேன் ऐसा ही आपको नहीं बैठना है मेरे लिए एक दुकान एक घर बस हो गया அலையிலுயா हालेलुया। ஒரு வீடு போதும் உட்கார்ந்திருப்பேன் एक ही घर मेरे लिए बस हो गया அலையிலுயா हालेलुया। இப்ப சிங்கிள் பெட் இருந்தா எனக்கு டபுள் பெட் வேணும் अभी सिंगल बेड है तो क्या चाहिए डबल बेड चाहिए டபுள் ட்ரிபிளா மாறும் डबल क्या होना चाहिए ट्रिपल होना चाहिए ட்ரிபிள் கொடுக்க மாட்டாங்க मिलेगा क्या नहीं அலையிலுயா हालेलुया। வீட்டுல ஒரு பெரிய பில்டிங் தெரியும் यहाँ से देखेंगे तो सामने एक बड़ा बिल्डिंग दिखेगा அந்த டீச்சர் வந்து இதுல நாங்க என்ன நம்ம ஒரேகாம்ல இருக்காங்க वहाँ पे एक टीचर रहता है वो इधर ही गोरेगा में अपना एसवी रोड के उधर रहता था ஒரு வீட்டு भाड़े का घर 60,000 ரூபாய் வாடகை 60,000 का भाड़ा அது சொன்ன கடவுள் வந்து உங்களை ஆசிரிப்பார் हम उनको बोला परमेश्वर आपको आशीष देगा 3 பெட்ரூம் கொடுப்பார் 3 बेडरूम का घर आपको आएगा அலையிலுயா இது கொடுப்பாரா वो बोलते थे ब्रदर मिलेगा இப்ப விசுவாசிக்க தர अभी विश्वास में वैसे उधर आके बैठा है அலையிலுயா हालेलुया। அது பெட்ரூம் ஆண்டு கொடுப்பார் अभी उधर 3 बेडरूम का घर में आके बैठा है அலையிலுயா हालेलुया। சாய் வாங்கினது கையில கொடுத்து அழுகுறேன் चाबी जैसा हाथ में आया हमारे हाथ में लेके इतना रोया நான் சொன்னேன் இப்ப வீடு கொடுத்தாலும் ஏன் அழுகுறீங்க हम बोला अभी घर मिल गया चाबी आ गया अभी क्यों रो रहे हैं இப்ப நாங்க சந்தோஷமா அழுகுறோம் ब्रदर ये आंसू आनंद का आंसू அலையிலுயா हालेलुया। எனக்கு பெரிய வீட்டை கொடு. मेरा प्रभु जैसा बताया वैसा मुझे दिया அலையிலுயா हालेलुया। கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் मांगो आपके लिए दिया जाएगा கட்டுங்கள் திறக்கப்படும் खटखटाओ आपके लिए खुला जाएगा நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவன் हमारे जो प्रभु महान प्रभु है எது விசுவாசிக்கிறீங்க कितने विश्वास करते हैं அலையிலுயா हालेलुया। ஒரு பெரிய பணக்காரன் एक बड़ा धनी मनुष्य है அடிக்கடி நீங்க பிலிப்பியர் 4:19 அடிக்கடி வாசி फिलिपियों 4:19 हमेशा आपको पढ़ना है அதுல படிச்சு அந்த ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கணும் वो वचन हमेशा आपको पढ़ के आशीष पाना है பண ப்ராப்ளமா पैसे की समस्या லோன் ப்ராப்ளமா लोन का प्रॉब्लम
இன்னையில இருந்து அதை ஆசீர்வதிச்சு சொல்லுங்க. आज के दिन इस वचन को पढ़ के आपको प्रार्थना करना है। 4:19 பிலிப்பியர் 4:19 फिलिपियर 4:19 4:19 मेरा परमेश्वर भी हाँ। अपने उस धन के अनुसार हाँ। जो मसीह महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்க குறையெல்லாம் மாத்தி பெரிய ஆசீர்வாதம் तो கொடுப்பார். परमेश्वर क्या करेगा? अपने धन के द्वारा क्या करेगा? हमारे सारे घटियों को पूरा कर देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமா. பெரிய ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார். एक बड़े आशीष आ जाएगा। சின்ன ஆசீர்வாதம் இல்ல. आशीष छोटा नहीं। எது விசுவாசிக்கிறீங்க? विश्वास करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलूया। எல்லாம் 4-5 வீடு வச்சிருக்கணும் பாம்பேல. इस बॉम्बे में सबके लिए 4-5 घर होना चाहिए, है ना? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆல்ரெடி ஒரு சிஸ்டர் ऑड्री नाम का एक सिस्टर है। மேல ரோட்ல ஃபேமஸ். मेरा रोड में ऑड्री वो ऑड्री आंटी फेमस है। ஆமா. சர்ச்சில் போய் பார்த்து கேட்டா சொல்லுவாங்க. चर्च में जाके फादर को भी बोलेगा, फादर भी जानता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதல்ல அந்த பயங்கரலாம் அவங்க வீட்டுல தான் போட்டோம். पहला पैंदर में उन्हीं के घर पे गया था प्रार्थना के लिए, इस बॉम्बे में ஜெர்மன். प्रार्थना किया। நீ இப்படி இப்படி செய் கடவுள் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார். उनको हम बताया आप ऐसे ऐसे करना, प्रभु आपको आशीष देगा। ஆண்டு மிரர் விட்டு நிறைய வீடு கொடுப்பார். मेरा रोड में तुम्हारे लिए बहुत सारा घर आने वाला है, நிறைய கடை கொடுப்பார். बहुत सारे दुकान आ जाएगा। ஆமா. 14 வீடு கொடுப்பார். 16 घर आ गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। 7 கடை கொடுப்பார். 7 दुकान है उनका। அல்லேலூயா. हालेलुया। சொல்லு. அவன் கல்யாணம் பண்ணாம ரொம்ப நாளா இருந்தான். और कई सालों से उनके लिए रिश्ता नहीं मिलता था। வீடு நிறைய போட்டு நிறைய कबर्ड में पूरा गहने बिने भर के रखा था, மனமெல்லாம் இருக்கு. पैसा सब है, மாப்பிள்ளை கிடைக்கல. लेकिन अच्छा शादी के लिए रिश्ता नहीं, लड़का नहीं मिला। 40 நாள் விடாம ஜெபம் பண்ணேன். हम उनको बोला 40 दिन उपवास में रह के प्रार्थना करना, கடவுள் உனக்கு. प्रार्थना करना, प्रभु आपके लिए रिश्ता लाएगा। இது 40 நாள் போட்டேன். ब्रदर 40 दिन का उपवास खत्म होने वाला இப்ப है, என்ன பண்ண? अभी क्या करने का? ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना ही करो। உனக்கு கப்பல்ல இருந்து ஒரு மாப்பிள்ளை வரும். आपको जहाज में काम करने वाला एक अच्छा रिश्ता आएगा, ஆனா முடி இருக்காது. लेकिन उसका बाल नहीं रहेगा, वो टकला रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஃபோன் பண்ணி. वो हमको कॉल किया, वो सिस्टर ने कॉल किया। நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சேன். ब्रदर आप जैसे जैसा बोला मैंने किया, பெப்சி எடுத்துட்டேன். बपतिस्मा लिया, கடவுளுக்காக இறக்கம் நடத்துறேன். परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, கூடிய சேரேன். सेवा किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா எனக்கு பார்க்க ஒரு மாப்பிள்ளை இருக்கு. अभी एक रिश्ता आ गया है, நாம நீங்க சொன்ன மாதிரியே இருந்துச்சு. आपने बोला वैसा ही रिश्ता आ गया। 28 வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாது. 38 इयर्स का है वो, तब तक उनका शादी नहीं हो रहा था। ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி மாப்பிள்ளை लेकिन उन्होंने बोला जैसा आपने बोला अभी एक रिश्ता आ गया, அழகா இருக்க. बहुत अच्छा दिखता है, ஆனா एकदम நீங்க सुंदर। சொன்னீங்க முடி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்க. அவர் நல்லா அழகா இருக்கு. आपने मेरे को बताया उसका बाल नहीं रहेगा, वो टकला रहेगा, लेकिन इसका तो बाल है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப எங்கேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு நடக்க போகுது. अभी एंगेजमेंट होने वाला है, அவரை உட்காந்துக்க சேர்ல உட்காந்துக்காரு. अभी सामने सामने बैठा है। நான் இப்ப என்ன பண்றது? अभी क्या करने का? அவரை ரூம் போட்டு हम बोला छुट्टे से उसको रूम में लेके जा, முடி இழுத்து பாரு. उसका बाल उसका सर पे हाथ लगा के देख, அல்லேலூயா. முடி இழுத்து பார்த்து சொல்றேன். वो ऐसे हाथ लगे बाल आ गया, அல்லேலூயா. नकली बाल आ गया। இது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குது. अरे ब्रदर जैसा आपने बोला वैसे ही टकला है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் நல்ல மனுஷன். लेकिन मिला तो मिला इतना अच्छा इंसान मिला, முடிதான் இல்ல. खाली बाल उसका नहीं टकला है, நல்லா அழகா. लेकिन इंसान इतना अच्छा हृदय का। மேயர் வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க. मेयर के घर में, बैंदर के मेयर के घर में जाते हैं, எப்படி நோயில் கிடைச்சு. हम मेयर के घर में जाते हैं, उनका ही नाम इतना बोल के तारीफ करते, ब्रदर वो नोएल लड़का मिला, कितना अच्छा लड़का। ஆர்டருக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைச்சு. वो ऑड्री को मिला तो मिला, इतना अच्छा लड़का मिला। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டு கொடுத்தா நல்லதா கொடுப்பாரு. परमेश्वर देता है तो अच्छा ही देता है, எது விசுவாசி? इसके लिए एहसास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। முடி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. बाल नहीं है, அல்லேலூயா. நல்ல மாப்பிள்ளை இருப்பாரு. लेकिन अच्छा ही लड़का मिला, நல்ல குணமா இருப்பாரு. अच्छा दिल का मिला, எது விசுவாசி? इसके लिए एहसास करते எல்லா हैं। கரங்களை தட்டி தேவன். जोरदार तालियां बजाओ। அல்லேலூயா. தேவன் அற்புதம் செய்யற தேவன். परमेश्वर चमत्कार करता है, அவங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளவு வீடு கொடுத்துருக்காரு. उनके लिए ही देखो कितना घर, कितना கருத்து दुकान। சுத்தி வீடுதான். वो मेरा रोड में चर्च के पास जाएंगे, पूरा उनका ही दुकान, उनका ही घर வீட்டுல देखेंगे। நிறைய துக்கான इधर भी जाएंगे, उनका एक दुकान उधर रहेगा ही रहेगा। கேளுங்க பெருசா கேளுங்க. इसीलिए परमेश्वर से आप मांगो, बड़ाई मांगो। எது விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने एहसास करते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதியாகமத்துல ஆபிரகாம் பார்த்து சொன்னார்ல. उत्पत्ति में अब्राहम को देख के प्रभु ने बताया, 12:12 வாசிங்க. 12 का 2 Genesis निकाल के बोलो, 12:2. 12:2। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष के मूल होगा। ஆமென். அல்லேலூயா. நீங்க என்ன ஜாதியா? हम कैसा जाति है? யாரும் உங்களை கேட்பாங்க என்ன ஜாதின்னு. कोई कभी आपको देख के पूछेगा तू कौन सा जाति है, என்ன ஜாதி? क्या जाति है? நீங்க என்ன ஜாதி? हम कौन से जाति हैं? வடா ஜாதி. एक பெரிய बड़ी ஜாதி. जाति है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த காடு 3 பெட்ரூம் கொடுத்துருக்குலாம் இங்க
பிரதர் அங்க அடிமைப்பட்டிருக்கோம். तो जिनको परमेश्वर वो सामने के जो बिल्डिंग में 3 बेडरूम का घर जिनको परमेश्वर ने दिया है उधर ही हम कुमार भाई को भेजा था। उनको रिक्शा चाहिए था कोई लेके जाने के लिए, उधर ही आते ना। நல்ல குடும்பம், கோவா ஃபேமிலி, நல்ல ஃபேமிலி. बहुत अच्छा फैमिली है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் சொன்னாரு கண்டிப்பா செய்வார். परमेश्वर हमको बताया मतलब वो जरूर करेगा। எது விசுவாசம் கீழே कितने सास करते हैं? வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் அவருடைய வார்த்தை மாறாது. आकाश पृथ्वी टल सकता है उसके शब्द कभी नहीं। நம்முடைய தேவன் பரலோக தேவன். हमारे प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर है। நிறைய பணம் இருக்கு, उसके पास बहुत सारे धन है, நிறைய கோல்டு இருக்கு, बहुत सारे गहने हैं, நிறைய டைமண்ட் இருக்கு. बहुत सारे डायमंड है। எது விசுவாசம் கீழே कितने सास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। ஆமா, தேவன்கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பா கொடுப்பார். परमेश्वर से आप मांगो आपके लिए वो देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆசீர்வாதம் சொன்னாரு கண்டிப்பா ஆசீர்வாதம். उसने बताया मैं तुझे आशीष देगा, जरूर देगा, ஏன்னா அவர் பரலோக ஐஸ்வர்யவான். क्योंकि वो स्वर्गीय धनी परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। கண்டிப்பா தேவன் உங்களை வெறுமையா விட மாட்டார். जरूर वो आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। ஆண்டுக்கு சொல்லணும், இந்த வருஷம் என்ன ஆசீர்வதிங்க. आप प्रभु से मांगो मुझे ये साल में आशीष प्रभु आप देना। உலகமெல்லாம் பஞ்சம் வந்தாலும் पूरे दुनिया आकार पे बढ़ जाए என் வீட்டுல பஞ்சம். लेकिन मेरे घर नहीं आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। பைபிள் இருக்கா இல்லையா? बाइबल में है ना वचन? ஒருத்தர் பிள்ளைய ஒருத்தர் சாப்பிடுறாங்க, அந்த அளவுக்கு பஞ்சம். देखो बाइबल में एक संभव है जो अपने बच्चे को ही मार के खाने की हालत हो गया था எலிசா காலத்துல. एलिशा के टाइम पे। ஹalleluya. हालेलुया। ராஜா கிட்ட வந்து அந்த எலிசா சொல்றாரு, राजा के पास आके एलिशा बता रहा என் है வாக்கின்படியே मेरे कहने पर வருஷம் பஞ்சமெல்லாம் மாறும். ये साल इस दुनिया के आकाल का ये जो समस्या बदलने वाला है। ஐயோ தேசம்லாம் பஞ்சமா இருக்கு. सब लोग बता रहे नहीं नहीं अकाल तो बढ़ गया है, ஆனா ஆண்டு பிள்ளைங்களுக்கு பஞ்சம் வர. लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग के लिए अकाल नहीं आएगा। எந்த பேர் इसलिए सास करते हैं। हालेलुया. हालेलुया। உலகம் முழுக்க பெரிய பஞ்சம் வரப்போகுது. पूरे दुनिया में अभी भी अकाल आने वाला है। கேஸ் பஞ்சம், गैस का हो गया, பெட்ரோல் பிரபாரம். पेट्रोल का हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। நிறைய பயிர் இருக்கு. और भी कई सारा अभी पूरा अकाल पड़ने वाला है। चावल का धान का बहुत सारा पड़ने वाला है। எல்லாம் பஞ்சம் வரப்போகுது. நெட் இல்லைன்னா ஒண்ணும் போன்ல ஒண்ணும் யூஸ் பண்ண முடியாது. अभी इंटरनेट सब कुछ ये सब का बंद होने वाला है। अरे ये अभी इंटरनेट नहीं तो हम सब कुछ नहीं करता। நிறைய அமெரிக்க கம்பெனி எல்லாம் மூட போகுது. बहुत सारे अमेरिकन कंपनी बारगांव का कंपनी सब बंद हो रहा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விசேஷ ஆசீர்வாதம். लेकिन इतने चीज में भी परमेश्वर के बच्चे लोग के लिए विशेष आशीष है। சிஸ்டர் சொன்னாங்க, एक सिस्टर ने बताया பிரதர் எங்க கம்பெனில எல்லாரையும் வேலை விட்டுருக்கீங்க. ब्रदर मेरा कंपनी में सबको काम से निकाल दिया। அப்படியா? हम बोला ऐसा ही है क्या? ஆகுது. हाँ ब्रदर, ஆனா என்ன சொல்றேன், लेकिन मुझे सिर्फ रखा है कंपनी में, நிறைய கம்பெனி வச்சிருக்கிறேன். मुझे उधर ही रखा है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விசேஷ ஆசீர்வாதம். परमेश्वर के बच्चे लोग के लिए हमेशा आशीष है। ஹalleluya. हालेलुया। சாரி பாத் விதவை வீட்டுல सदीपात विधवा रह के रहती है। எல்லாம் பஞ்சம். देखो उस समय पर सभी गांव में देश में अकाल है, அந்த விதவை வீட்டுல பஞ்சமே இல்லை. उस विधवा के घर पे अकाल नहीं। ஏன்? क्यों? அவ வச்சிருந்த கொஞ்சமா उसके पास जो अंत का बचा हुआ थोड़ा सा आटा, கொஞ்சம் என்னதான் थोड़ा सा जो तेल, அது யார்கிட்ட கொடுத்தா? वो किसके लिए क्या बना के दी? सेवकाई के கடவுளுடைய लिए। சேவை செஞ்ச परमेश्वर के सेवका जो आया है उसके लिए उसने रोटी बनाई, ஊழியக்காரருக்கு கொடுத்தா सेवकाई को दे दी। அந்த பானையை பார்க்கும்போது நிரம்பி வரும். सेवकाई को देने के बाद वो वापिस बर्तन पे देखते हैं आटा उसी पे है। ஹalleluya. हालेलुया। பரலோக தேவன் स्वर्गीय परमेश्वर தேசமெல்லாம் பஞ்சம் வந்தாலும் அந்த வீட்டுல பஞ்சத்தை இல்லாம. पूरे देश पे जब अकाल था लेकिन उसके घर पे नहीं, ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா அவர் பரலோக தேவன். क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। பரலோகத்துல பவுல் 3ஆம் வானம் வரைக்கும் போனார். स्वर्ग में पौल के बारे में देखते हैं तीसरे आकाश तक चला गया। ஹalleluya. हालेलुया। பைபிள் வாசிக்கிறீங்கல்ல, बाइबल में पढ़ते हैं ना 3ஆம் வானம் வரைக்கும் பவுல் போனார். तीसरे आकाश तक वो चला जाता। அப்ப நம்ம போக மாட்டோமா? तो हम भी जा सकते क्या? नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। வாசி பாருங்க, हम पढ़ेंगे எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 2-3 வாசிங்க. दूसरा कुरिन्थियों का 2 निकाल, கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம். दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2 और 3 पढ़ो। 12 2 கொரிந்தியர் 2 கொரிந்தியர் 12 2 and 3. 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों का 12 2 और 3। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया है। நம்ம எத்தனாம் வானம் வரைக்கும்? तीसरे 3ஆம் வானம் வரைக்கும் பவுல் போனார். अब देखिए तीसरे आकाश तक पौल गया है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க படுத்த அந்த பரலோக தரிசனம் வரும்.
हम जब लेटते हैं तो हमें भी ये स्वर्ग के दर्शन आना चाहिए என்று விசுவாசிக்கிறேன். इसलिए एहसास करते हैं ஹalleluya. हालेलुया அதான் இயேசு கிறிஸ்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் வாழ்த்தானா அந்த கதை. इसीलिए परमेश्वर यीशु जब उनको बता रहा था जब बातें कर रहा था तो ये लोग सभी चले लोग आकाश की ओर ही देखते जा रहे அப்படியே हैं ஆண்டவர் படுத்துட்டார். क्योंकि बात करते करते यीशु स्वर्ग ரெண்டு जा रहा है கரங்களை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தார். दोनों हाथ बढ़ाकर आशीष दिया அப்படியே பெத்தானியா அந்த எருசலேம் வந்து பெத்தானியா வரைக்கும் அடைச்சிட்டு அந்த மலையில அப்படியே ஏறி போனார். जेरूसलम से बेतानिया तक उन्हें लेके गया उसके बाद वैसे ही ऐसे हवा पे उड़ते उड़ते आकाश की ओर மேகத்துல அப்படியே மறைஞ்சார். पूरे बादल पे ऐसे चिपके ரெண்டு தூதர் வந்துச்சு வென்று. दो स्वर्गदूत वहां से वापस आया பிரகாசமான தூதர் வந்தார். प्रकाशित स्वर्गदूत वापस स्वर्ग से आया அலிலராகிய மனுஷரே आके बताया गैलील के मनुष्य ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து போச்சு? तुम क्यों आकाश की ओर देखते हो உங்க இடத்துல இருந்து எப்படி வானத்துக்கு போனாரோ तुम्हारे बीच में से जैसा ही परमेश्वर गया है எப்படி போனாரு? कैसा गया था 33 வயசு வாலிபனா போனாரு. 33 इयर्स का वो गया था जीसस அவர் அப்படியே வருவார். वैसे ही वो फिर से आने वाला है ஹalleluya. हालेलुया இயேசு எப்படி வருவாரு? कैसा वो आएगा எப்படி எங்க போனாரோ அதே வாலிபனா வருவார். जैसे यंग एज में वो गया है वैसे वो आने वाला है அப்ப ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு ஏஜ் கிடையாது. तो हम परमेश्वर के बच्चे लोग जो है हमारे लिए उम्र नहीं हुआ है ஹalleluya. हालेलुया எல்லாம் வாலிபர் தான். आप सब अभी भी जवानी है ना 100 வயசு ஆபிரகாம் சொன்னார்ல. 100 उम्र का अब्राहम क्या बताता था कितना साल का ஏய் 16 வயசுல உனக்கு ஆகுது. हाँ तू तो 16 साल के है ना हाँ सारा को देख के बताता அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல எனக்கு இப்ப 100 கிடையாது 16 தானா. तो अब्राहम देखो अब्राहम उधर दूध को भी बताता हाँ मेरा भी 16 उम्र है ஹalleluya. ले लिया ஆமா சாரா சொன்னார் ஓடி நான் பிடிக்கிறேன். सारा को अभी बोलता है 16 उम्र सुनने में आया इतना ही तो बोलता है सारा अभी तो भाग हम खेलेंगे மெம்பரோட ரெண்டு பேரும் மரத்தை तो சுத்தி उधर भाग मैं तेरे को पकड़ने आएगा தொட்டு பிடிச்சு விட்டாரு. ये लोग तेरे को भागो पूरा भागते खेल रहे हैं ஓடுறா அப்படின்றா ஓடுறா அப்படின்னு. ये लोग पूरा उधर खेल रहे भाग भाग के ஹalleluya. ले लिया 100 வயசு எங்க மாதிரி இருக்காங்க. 100 उम्र में भी जवानी के तरह ये लोग भाग के खेलते हैं ஹalleluya. हालेलुया அப்ப நாமளும் யாருதான்? तो हम सब कितने उम्र है कितना उम्र 16 16 बुढ़ाई வயசு. का ही मुंह से आवाज आता है मैंने कहा नहीं, बोलता हम अभी भी बुढ़ी बुढ़े हैं வேணா வேணா கடையில கண்ணாடியில போய் பாருங்க. अगर आपको शक है आईने में एक बार देख लो ஹalleluya. நீங்க எல்லாம் எத்தனை வயசு? आप सब कितने उम्र है हम सब 16 उम्र के அப்படியே எல்லாம் கண்களை மூடிட்டோம். चलो हम आगे बंद करके प्रार्थना करें இயேசு கிறிஸ்து 33 வயசு வாலிபனா மேல போனவர் அப்படியே வருவார். प्रभु यीशु जैसे ही जवानी उम्र में गया था वैसे ही फिर அப்படியே आया। உங்களை எல்லாம் கூப்பிடுவார். वैसे ही फिर वो आपको ले जाने आ रहा है எல்லாம் பரவதர்சவா. हम सब आके बंद करके स्वर्ग की இன்னைக்கு ओर வியாதி பிரச்சனை போட்ட பயம் எல்லா திகிலும் எல்லாம் மாறும். आज के दिन आपके आप जो भी बीमार में संकट में परेशान में आए सब दूर आप जाने वाला है எல்லா பிசாசுக்கும் மாறும். सब शैतानी जाने वाला எல்லா है சேவனை கட்டு மாறும். सारे जादू मंत्र जाने वाला है எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. अभी हम थोड़े देर எல்லாம் मुंह ஓடி खोल के स्तुति போயிட்டு करेंगे எல்லா பரிசுத்த ஆவி पवित्र आत्मा में भर के பரிசுத்த வல்லமை स्तुति करेंगे ஆண்டவரே இதனால உம்முடைய வல்லமை நான் பெற்றுக்கொள்றேன். आज आपकी सामर्थ्य में पानी है खुदा உம்முடைய ஆவியை பெற்றுக்கொள்றேன். आपकी आत्माओं को पाना है உம்முடைய பரிசுத்த ஆவி எங்க விடுதலை கொண்டிருப்பார். आपकी स्वर्ग की आत्मा में पाना है प्रभु எல்லா பிசாசு கட்டு சேவனை கட்டு எல்லாம் மாறும். सारे शैतान की बंधन दूर रखना है குடும்பத்துல இருக்க எல்லா கட்டுகளும் மாறட்டும் ஆண்டவரே. परिवार में जो होने वाले सारे बंधन எல்லா को ஆசீர்வாதம் तोड़ना இறங்கும்படியாக सभी आशीष को दे உம்முடைய देना மகிமையை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. आपकी महिमा से भर பிள்ளைகளை உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. बच्चे लोग को ऊंचा करना கிருபை நன்மையினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. भला कृपा से भरना எல்லா சோதரிப்பு எல்லா சோதரிப்பு சோரா பாபா பாபா हम सब स्तुति करेंगे मुंह खोल के स्तुति करेंगे வல்லமை मुंह खोल के हम स्तुति करेंगे उसकी प्रेस करते மகிமை रहेंगे நிரப்புங்க उसकी धन्य करते रहो महिमा करते रहो பாபா லாரா பாபா பாபா கிருபை 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 பரலோக பாசை தரும்படியாக आपकी भाषा அந்நிய में பாஷை அடையாளங்கள் தரும்படியாக आपकी भाषा में பாபா 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 கிருபை நிரப்புங்க आपकी कृपा से भरना आपकी सामर्थ से भरना प्रभु भरना प्रभु வல்லமை भरना நிரப்புங்க आपके सामर्थ में भरना சோதர பலியிடுகிற தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் जो धन्य बलि करता है वो परमेश्वर की ओर देखता है பரலோக தேவனான स्वर्गीय परमेश्वर आप है பரிசுத்த ஆவி ஊதி பெற்றுக்கொள்ளுங்க என்று சொன்னீர். पवित्र आत्मा आप देते हैं உம்முடைய வல்லமையின் ஆவியான ஊர்மே இறங்கிட்டு மாட்டேன் आपकी सामर्थ्य आत्मा आने दो प्रभु அதன் மேல இறங்கிடுச்சாங்க और मेरे के ऊपर आया था அதன் மேல இறங்கிடுச்சாங்க और तो लोग के ऊपर आया था हाँ, मेरे ऊपर भी आने दो। धन्यवाद यीशु के नाम से आप